Okay, let's solve this problem. First one, the emission spectrum of the helium plus of the consequences of the transition of electron from orbit number n2 to orbit number n1. n1 और n2 में एक relation given देके रखा. From that information, you have to find out the n1 and n2. And once you get the n1 and n2, then you have to find out the wavelength of the photon that will be emitted from the n2 to n1. So there are two equations. From there you can find out the n1 and n2. And once you get the n1 and n2, then you can apply the formula of lambda and you can get the lambda. n1 n2 क्या है वो भी बता दूंगा, ठीक है. Okay, Raj, good. If you know the n2, then you can find out the n1 also. N is equals to 2. Yes, good. Now you have to apply the formula for lambda. Once you substitute the value of n1 and n2 in the lambda or the expression, then you will get lambda in Armstrong. और किसी का n1 n2 आया क्या? Okay, Saloni, good. Okay, Hamza. Yes. Good. I will wait for another 1 minute. After that, we'll solve this problem. Okay, Jeet, good. Okay, Shamira, good. Okay, Ashok. Is there anyone जिसका और value आया है lambda का? Maximum people are getting n1 and no, Rajshri, I think this is not the correct one.
2736 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ओके लेट्स सी। मैक्स N1 M2 सही आ रहा है, बट आंसर आई थिंक डिफरेंट आ रहे हैं तुम लोग। एक मिनट। ओके वेट। ठीक है, वेट फॉर 2 में, क्योंकि मेरा पेंसिल डिस्चार्ज है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले तुम एक काम करो, तुम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि मेरा वो पेंसिल थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द लैम्डा ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ लिथियम 2+। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes। And find out the ratio of wavelength of the first line of Balmer series of lithium 2+ and series limit of the p fund of the helium plus। उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके 1026, ओके फाइन। ओके रुचिर गुड। ओके जीत। ओके गार्गिया। नो एलिशिया, इट्स नॉट दिस वन। ठीक है, विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट उससे पहले ये प्रॉब्लम कर। कैलकुलेट द रेशियो, फ्रैक्शन में ही रखना है, पॉइंट्स में नहीं फाइंड आउट करना है। Calculate the ratio of the wavelength of first line of Balmer series of lithium plus and the series limit of the p fund series of helium plus। Okay, Alicia, no problem. Yeah, now your answer is correct. Solve the next one. ये सीरीज लिमिट लास्ट लाइन होता है, इंफिनिटी टू दैट पी फंड का जहां पे एंड हो रहा है। इंफिनिटी टू जहां पर पी फंड एंड हो रहा है, दैट इज द सीरीज लिमिट। ठीक है फाइन। चलो, पी फंड इज द 5, 4 इज द ब्रैकेट। चलो लेट्स डू द फर्स्ट प्रॉब्लम। बाकी सब लोग जिसका फर्स्ट हो गया, ये दे कैन सॉल्व द सेकंड। यहाँ पे इनिशियली क्या इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पे था 2N2 प्लस
3n1 इज इक्वल टू 18, यहाँ पर आएगा 2n2 minus 3n1 is equals to 6. Let's assume this equation 1, this equation is as a 2. You can simply add 1 plus 2. If you do 1 plus 2, तो 3n1 से 3n1 cancel out हो जाएगा. And you will get 4n2 is equals to 24. From here, you will get n2 is equals to 6. If you substitute this value in the from 1, first expression, if you substitute from 1, equation क्या आएगा? 2 into 6 plus 3 into n1 is equals to 18. यहाँ से आएगा 3n1 is equals to 6. तो वहां से n1 आ जाएगा 2. एक्चुअल में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है तुम्हारे पास 6 से Hello, now am I audible? तो n1 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 2. n2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 6. देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 1 by lambda. 1 by lambda is equals to r into z square. हीलियम प्लस देख के रखा, z कितना हो जाएगा? 2. तो 2 का स्क्वायर into 1 upon n1 स्क्वायर. n1 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर. n2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर. टेक द एलसीएम. Whenever you take the LCM, if you solve this, so you will get 1 by lambda is equals to 4 into r, 3698. तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8 by 36 आ जाएगा. तो यहाँ से तुम्हारे पास 1 by lambda आ जाएगा. 1 by lambda is equals to 8r by 9. ठीक है, तो वहां से तुम्हारे पास lambda आ जाएगा 9 by 8r. 9 by 8r means 9 divided by 8 into 912. From there you will get 1026 answer. क्या फर्स्ट प्रॉब्लम सबको क्लियर है? Yes, no. So can you explain it once again? What happened? Sir, the first part, like, can you explain it? सिंपली मैंने क्या कर दिया, तो 2 इक्वेशंस थी ना, उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. इफ आई ऐड दीस 2 इक्वेशन तो n1 कैंसिल आउट हो जाएगा. यस और नो? Oh yeah, simultaneous equation. Okay. Yeah. Thank मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग. सेकंड आंसर भी तुम्हारे पास आ गया है. ठीक है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द लिथियम प्लस इन सीरीज लिमिट ऑफ द पी फंड सीरीज. ठीक है, फर्स्ट लाइन बामर का तो सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला. उसको लैम्डा 1 लिख लेते हैं. 1 by lambda 1 is equals to, in the second question don't we have to get the wavelength? So that बच्चे वेवलेंथ क्यों निकालना? डायरेक्ट रेशियो ले लेना. Why you are finding the wavelength? एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकालनी है? r into z स्क्वायर. फर्स्ट लाइन किसका है? लिथियम का. तो z कितना होगा? 3 का स्क्वायर इंटू बामर का फर्स्ट लाइन. बामर का फर्स्ट लाइन मतलब 1 upon 2 स्क्वायर माइनस
1/3 square. If you solve this na, so you will get 9/4 9/4 minus 1 5/4. तो यहाँ से if you solve this you will get 1/λ is equals to, मैं पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूँ, एलसीएम वेलसीएम लेके जो भी कैंसिल आउट करना था वो कैंसिल आउट करके फिर पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लैम्डा तुम्हारे पास आ जाएगा 4r, और वैसे अगर मैं लैम्डा 2 फाइंड आउट करूंगा तो 1/λ2 मैं आर के एक्सप्रेशन में ही छोड़ दिया है, ठीक है। और हीलियम प्लस के तो आर इंटू 2 स्क्वायर इंटू सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन ऑफ द पी फंड एंड होता है 5 पे, 1/5 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर. From there, if you solve this, so you will get 1/λ2 is equals to 4r/25. 4r/25. From there, you will get λ2 is equals to 25/4. Now you have to take the ratio of λ1 and λ2. तो मैं r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, ठीक है। तो from here you will get 4/5r into 25/4r. तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, so from here you will get λ1 divided by λ2 is equals to 16/125, not 125/16. okay, जिसका भी आंसर 125/16 आ रहा है उन्होंने क्या किया होगा, माइट भी उन्होंने यहीं पे रेशियो ले लिया होगा, अगर तुम यहाँ पे रेशियो लोगे तो यू विल गेट λ2/λ1, नॉट λ1/λ2। तो वो चीज ध्यान रखना। क्या सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? आई थिंक 2-3 लोग थे स्टार्टिंग में, आई थिंक एक तो रुचिर का आंसर आया था 125 और एक और किसी का आंसर था 125/16। क्या उनको क्लियर है? यस, चलो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इफ द वेव नंबर दे के रखा है फर्स्ट लाइन का वेव नंबर ऑफ बाउमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स गिवन है, और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हीलियम प्लस का निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालने का मतलब यू हैव टू टेक द एक इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? रेशियो, यस करो। पहले फर्स्ट का आंसर दो, देन सेकंड पार्ट करना। इन दिस क्वेश्चन they have given the 2 parts.
सिर्फ फ्रैक्शन में ही बता दो ना यार, 21.6 वेदांत। फ्रैक्शन में आई थिंक 108 को डिवाइड बाय 5 है ना वेदांत, 108 डिवाइड बाय 5x। ओके। ओके हमजा। यस। ओके शलोनी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको लैम्डा निकालना है, तो वो थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा। ओके धैर्य गुड। जस्ट एक वेव नंबर गिवन है x, और दूसरा वेव नंबर फाइंड आउट करना है। किसी एक लाइन का वेव नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेव नंबर ऑफ द सेकंड सीरीज, कुछ तो एक और लाइन। तो जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यू हैव टू टेक द रेशियो, तब तुमको उसका आंसर तुम्हारे पास उस फॉर्म में मिलेगा। विच रिलेशन बच्चे? वेव नंबर का एक्सप्रेशन। बच्चे एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ऐसी प्रॉब्लम लास्ट टाइम भी किया था। वन इंफॉर्मेशन इज गिवन, रिलेशन क्या है, बामर का फर्स्ट लाइन का गिवन है, तो फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग लिखो वेव नंबर, एंड सेकंड का एक्सप्रेशन लिखो, देन टेक द रेशियो, देन यू कैन गेट द आंसर ऑफ द सेकंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके लेट्स सॉल्व दिस। ओके सलोनी गुड। वेदांत तुमने एक मिस्टेक किया है यार, कुछ तो। यू हैड मेड वन मिस्टेक। वेव नंबर फर्स्ट का गिवन है तो वेव नंबर का एक्सप्रेशन लिख लो। तो वेव नंबर का एक्सप्रेशन क्या था? वेव नंबर का एक्सप्रेशन था, इसको वेव नंबर वन बोलते थे, आर इंटू जेड स्क्वायर। वही जो 1/λ का एक्सप्रेशन था वही था वेव नंबर का एक्सप्रेशन, आर इंटू वन स्क्वायर, और बामर का फर्स्ट लाइन है तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे, मैं हर बार एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ से if you solve this तो you will get 5r divided by 36। वैसे ही म्यू2 निकालना है। म्यू2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? वो है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हीलियम के लिए, r इंटू 2 का स्क्वायर। ओके गार्गी गुड। 1 म्यू2 कितना है तुम्हारे पास? इट्स r इंटू 2 स्क्वायर, और फर्स्ट लाइन है लाइमन का। फर्स्ट लाइन लाइमन का मीनिंग 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो म्यू2 बार इज इक्वल टू 4r इंटू 3/4। तो वहां से आ जाएगा ये 3r। नाउ यू कैन टेक द रेशियो। इफ यू टेक द रेशियो म्यू1 बार डिवाइडेड बाय म्यू2 बार इज इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3r। r से r कैंसिल आउट, and you can substitute the mu1 as x, mu2 as mu2 bar is equals to 5/108. From here you will get mu2 bar is equals to 108/5 into क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, you will get the answer। क्या फर्स्ट सेक्शन सबको क्लियर है?
चलो सेकंड का भी आंसर काफी लोगों का आ गया है। सेकंड के अंदर इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ। तो बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे एक्सप्रेशन है। कहना है मैं क्या, एक तो देखो म्यू1 का एक्सप्रेशन गिवन है अपने को। कौन सा? म्यू1 गिवन है अपने को, इट इज अ 5r डिवाइडेड बाई 36। और अपने को लैम्डा निकालना है, तो इस बार मैं लैम्डा 3 का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 1/λ3। क्या लैम्डा 3 को मैं म्यू 3 बार भी बोल सकता हूँ क्या? यस नो? r इंटू 1 स्क्वायर अपॉन, सेकेंड लाइन है लाइमन का, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो तुम कैसे भी रेशियो ले लो, तुम 1/λ3 का रेशियो ले लो, म्यू 3 का रेशियो ले लो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो पहले मैं म्यू 3 फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 8r/9। तो टेक द रेशियो ऑफ म्यू1 बार, दिस इज इन दोनों का एक्सप्रेशन ले लो, म्यू1 बार डिवाइड बाय म्यू2, म्यू 3 बार, म्यू1 बार डिवाइड बाय म्यू 3 बार। So you will get 5r divided by 36 divided by 8r/9. If you solve this, you will get mu1 bar divided by mu3 bar is equals to, कितना आ जाएगा ये? 45, ये 4 times 5 divided by 32। And we know that कि जो mu1 है वो क्या है? mu1 तो x है तुम्हारा, mu1 तो क्या है? x है। इसका mu3 बार कितना आ जाएगा? You will get mu3 bar 32x/5। तो अपने को म्यू 3 निकालना है, म्यू 3 नहीं निकाल के अपने को क्या निकालना है? λ3। λ3 क्या होगा? 1/वेव नंबर, इट्स 5/32x। क्लियर? तुम डायरेक्ट लैम्डा से भी कर सकते हो। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है क्या? Okay then solve the next one. If the wavelength of photon emitted if an electron jumps from n is equals to 4 to n is equals to n in helium plus, इस बार वेवलेंथ गिवन दे के रखा है और n फाइंड आउट करना है। इस n का वैल्यू, इस n का वैल्यू क्या होगा? 4 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? n जो है वो 4 से कम है या फिर ज्यादा? Vedant is saying it's less than 4, Jeet is saying it's greater than 4। मोर कैसे होगा बच्चे? देखो क्या लिखा है इसमें, फोटोन इमिट कर रहा है वो और 4 में है। अगर वो फोटोन इमिट करेगा तो n का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा? लेस आएगा ना 2 से, सॉरी लेस आएगा ना 4 से। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, एक ही अननोन है n, फाइंड आउट करो, यू विल गेट द आंसर। राजश्री क्या हुआ ऊपर वाले प्रॉब्लम में? कौन सा स्टेप बताना है? जो सेकंड पार्ट है वो कैसे है वो एक बार बताओ। बच्चे म्यू1 बार समझ में आया, 5r/36 है, यस नो? यस तो म्यू 3 बार को मैंने लिख लिया r/1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम था और सेकंड लाइन था लाइमन का, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये क्लियर है? उससे यहाँ से कितना आएगा? वो 8r/9 आ जाएगा, यस और नो? यस उसके बाद म्यू1 बार और म्यू 3 बार का रेशियो ले लो। उसके बाद म्यू1 बार म्यू 3 बार का रेशियो ले लो, म्यू1 बार को x सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही म्यू 3 बार निकलेगा इन टर्म्स ऑफ x वो आ जाएगा 32x/5। बट मेरे को म्यू 3 नहीं निकालना था, मेरे को λ3 निकालना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, λ3 कितना होगा? 1/म्यू 3 बार। सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द λ3। क्लियर है? ओके सर थैंक यू। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
if the lambda of photon emitted when electron jumps from n is equals to 4 to n is equals to 2, then find out is helium plus के लिए और wavelength भी given है, and find out the value of n. बच्चे फोटोन इमिट कर रहा है, चलो नहीं, वो फोटोन इमिट कर रहा है, तो 4 से अगर फोटोन इमिट करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो लोअर स्टेट में आएगा ना। अगर इमिटेड की जगह एब्जॉर्ब लिखा होता तो इसका मतलब n से ज्यादा होता उसका वैल्यू, सिंपल। वेदांत ये तो नहीं आया 40 बाई ले में 19 कैसे आ जाएगा? ओके आयुषी, यस, आंसर इज राइट। वो इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब तूने कुछ मिस्टेक किया है, सिंपल। इंटीजर ही आएगा। ओके अनविता, यस गुड। ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला लिखो, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड, क्या है, हीलियम, प्लस आर इंटू 2 स्क्वायर इंटू n1 स्मॉलर है तो 1/n² माइनस 1/4 स्क्वायर, सिंपल। इसका वैल्यू गिवन है 1/1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। तुम आर का वैल्यू भी लिख सकते हो, आर का वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना होगा, 1/912 आर्मस्ट्रॉन्ग, यस। अगर 1/r 912 है तो आर क्या होगा, 1/912, सिंपल। तो इसको तुम लिख सकते हो 1/912 इंटू 4 इंटू 1/n² माइनस 1/4 स्क्वायर, सिंपल। इसको सबको इस साइड लेके आ जाओ तो यू विल गेट 912/1216 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/n² माइनस 1/4 स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यस।
चलो, उसके बाद ये 304 से कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स और ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 3/16 is equals to 1 upon n square minus 1/16। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 प्लस 1/16। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4/16। 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से यू विल गेट एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ से यू विल गेट एन इज इक्वल टू 2। एक्चुअल में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 से 2। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? कर सकते हैं इस टाइप के सम्स जब वेवलेंथ गिवन हो और एन फाइंड आउट करना हो। यस, ओके देन यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। सेम टाइप एक्सप्रेशन ही है, बट इस बार तुमको जो लेट्स से किसी एक्साइटेड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, अगेन तुमको एन ही फाइंड आउट करना है, बट इस बार लैम्डा और आर के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो ये उससे और इजियर हो गया क्योंकि कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। सिंपल तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना है, सिंपली तुमको अरेंज करके आंसर फाइंड आउट करना है। Similar kind of problem है, but it is the easier one than the previous। Okay, someone I solve for the n and the got the square. Can you explain the question once? बच्चे सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। तुमको वेवलेंथ गिवन है और किसी भी स्टेट एन से वो कहाँ आ रहा है, ग्राउंड में आ रहा है, और एन फाइंड आउट करना है। यही सेम चीज तो अभी की थी अपन ने। वेवलेंथ गिवन था, 4 से किसी स्टेट एन में आ रहा था, तो यहाँ पे अगर एन यहाँ पे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर भी तो निकाल सकते हैं। Two people are getting B. Okay. Okay, Ruchi. Okay, Ruchi is also getting the B. Okay.
सिद्धांत इज ऑल्सो गेटिंग द बी। यार प्लीज अपना माइक बंद रखो ना यार। चलो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन? यार सेम प्रॉब्लम अभी जैसा कि है वैसे ही करना है यार। 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड के लिए हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाइड्रोजन एटम बोल के रखा है तो 1² इंटू 1 - 1/n²। ये सबको क्लियर है? यस नो? उसके बाद सिंपली 1/λr इज इक्वल टू 1 - 1/n²। 1/n² को इस साइड लेके आ जाओ तो यहाँ से आएगा 1 - 1/λr। From here you will get 1/n² is equals to λr minus 1/λr. From here you will get n² is equals to λr upon λr minus 1। तो यहाँ से n जो आएगा वो आएगा λr upon λr minus 1। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा अभी? क्या पार्ट सबको क्लियर है? चलो फाइन, देन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। whenever you solve these type of problem ना, सबसे पहले ऐसे लाइन डायग्राम बना लो। अगर एक से ज्यादा रेडिएशंस कभी भी दिखे ना, ऐसे लाइन डायग्राम बना लो यार। लेट्स अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया। एक डाई है जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली। लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। एनर्जी क्या है उसका? ई। अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? वो हायर स्टेट में जाएगा। तो लेट्स से वो यहाँ चला गया। बट इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर गया ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। बट इलेक्ट्रॉन हायर में स्टेबल है या लोअर में स्टेबल है? इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में स्टेबल है या लोअर स्टेट में स्टेबल है? तो लोअर स्टेट में स्टेबल है, तो फिर से नीचे आएगा। और फिर से जब नीचे आ रहा है तो क्वेश्चन में ये लिख के रखा है कि वो क्या कर रहा है? 2 फोटोन इमिट कर रहा है। इसका मतलब पहले यहाँ पे यहाँ से यहाँ आया होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ आया होगा, तभी तो 2 फोटोन इमिट करेगा। और जितना एब्जॉर्ब किया ना एनर्जी, उतना का उतना वो इमिट भी कर रहा है। तो यहाँ से एक फोटोन निकलेगा जिसका वेवलेंथ लेट से λ1 है, उसकी एनर्जी लेट से E1 है। और यहाँ से एक और फोटोन निकलेगा जो कि λ2 है और एनर्जी E2 है। और जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही इमिट कर रहा है। ये क्वेश्चंस में गिवन है। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे ट्रांजिशंस दिखे ना, तो ऑलवेज ट्राई किए ऐसा डायग्राम बना। यस रुचिर, ये सही बोल रहे हो तुम कि एनर्जी जो ई होगा, रुचिर इज सेइंग एनर्जी ई इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2।
यस रुचिर, यू कैन सिंपली से दैट। हाँ बच्चे कर सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा यूज कर सकता हूँ क्या एनर्जी को? यस, एच सी बाई लैम्डा यूज कर सकते हो तुम एनर्जी को, क्योंकि फोटोन का ही एनर्जी है ना, इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ओनली। ओके हमजा, गुड। ओके सिद्धांत, गुड। ओके आयुषी, गुड। ओके रुचिर, गुड। कि मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग द आंसर राइट नाउ, ठीक है। अगर एनर्जी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा, इसको लिख सकता हूँ एच सी डिवाइड बाई लैम्डा वन, इसको भी लिख सकता हूँ एच सी डिवाइड बाई लैम्डा टू। नाउ यू कैन कैंसिल आउट द एच सी। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? यू विल गेट वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई लैम्डा वन प्लस वन बाई लैम्डा टू। टेक द एलसीएम। If you take the LCM, so you will get 1 by lambda is equals to lambda 1 plus lambda 2 upon lambda 1 into lambda 2। तो यहाँ से lambda कितना आ जाएगा? You will get lambda is equals to lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 plus lambda। तो आंसर will be B। Now solve this problem. The gas absorb a photon of this and emits at two wavelength. If one of the emission at, अब ऐसे देखो, अब इस एग्जाम में ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। एग्जाम में क्या कर सकता हूँ कि लेट्स से लैम्डा वन लैम्डा टू दे दिया और लैम्डा लैम्डा पूछ लिया। मैं एग्जाम में ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने लैम्डा वन लैम्डा टू गिवन है और आई कैन सिंपली से दैट कि लैम्डा फाइंड आउट करो। कुछ भी नहीं करना है एक्सप्रेशन को। क्या इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं? इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट इसको याद भी रख सकते हो, इससे प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जाम में तुम्हारे पास लैम्डा गिवन है, लैम्डा वन गिवन है और लैम्डा टू पूछ सकते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट के अंदर है। देखो, गैस ने कोई फोटोन एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद उसने इमिट की है दो वेवलेंथ, उसमें से एक का एमिशन का वेवलेंथ गिवन है, दूसरे के एमिशन का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इसको सॉल्व। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले मेंस के एग्जाम एआई ट्रिपल ई के फॉर्म में होते थे। टिल 2012 तक जो भी मेंस के पेपर होते थे वो मेंस नाम नहीं होके उसका ट्रिपल ई होता था, जहां से जनरली एनआईटीज और वो सब कुछ मिलते थे। तो ये 2011 का क्वेश्चन है।
Okay, you are getting B. Okay, 3 to 4. Okay. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तुम वहीं से कर लो, या फिर तुमको अगर ऐसे नहीं करना तुम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। 1/λ इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। लैम्डा लैम्डा गिवन है इसका, और λ2 भी, λ1 गिवन है लेट्स से, और वी वांट टू फाइंड आउट द λ2। वी वांट टू फाइंड आउट द λ2। कुछ भी नहीं करना, इसको इस साइड लेके आ जाओ। सॉरी। -160 180 is equals to 1/λ2. Take the LCM. So 1/λ2 is equals to 680 minus 355 upon 680 into 355, एंड इसका इनवर्स रिवर्स भी ले लो। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 325 upon 680 into 355. From here you will get 355 into 680 divided by 325। अब एग्जाम में इसको सॉल्व करने की नीड नहीं, देखो सिंपल चीज ये देखो, अगर सपोज ये वाला वैल्यू अगर ये 325 होता तो तुम्हारा आंसर कितना आता? 680। यस, अगर ये 325 होता तो आंसर कितना आता? 680। बट ये 355 है, इसका मतलब आंसर 680 से स्लाइटली ज्यादा है। तो देखो 680 से स्लाइटली ज्यादा ऑप्शन कौन सा है? कुछ भी। सर आप 1035 क्यों नहीं बोले? बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो स्लाइटली ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने 743 लिखा। क्लियर? यस, नो? चलो। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही है। Am I audible? ओके, ये मैं एक बार बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है एंड। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? लेट्स से अगेन, जब भी दो से ज्यादा ट्रांजिशंस दिखे ऐसा डायग्राम ड्रॉ करिए। यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस डायग्राम। ये हो गया। उसने क्या बोल के रखा है? फर्स्ट लाइन लाइमन और सेकंड लाइन लाइमन का। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन लाइमन एंड सेकंड लाइन लाइमन। तो ये हो गया लाइमन का फर्स्ट लाइन, ये हो गया लाइमन का सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या है? λ1। सेकंड लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या है? λ2। थर्ड लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या है? और बामर का फर्स्ट लाइन बोल के रखा था, बामर का फर्स्ट हो गया ये। इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है? λ3। और लेट्स से इसके करस्पॉन्डिंग E2, इसके करस्पॉन्डिंग E1, इसके करस्पॉन्डिंग E3। तो कैन आई सिंपली से दैट E2 is equals to E1 plus E3? Yes or no? Yes, no? तो यहाँ से मेरे को पता है कि 1/λ2 is equals to 1/λ1 plus 1/λ3 आएगा। yes or no?
एनर्जी गैप को सिंपली, जब भी तुम ऐसे 2-3 ट्रांजिशंस दिखे ना, बहुत सारी सीरीज दिखे, तो लाइन ड्रॉ करो, यू विल गेट द आंसर, टेक द एलसीएम। ये वैसा ही प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ से लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3। अगर मेरे को एग्जाम में कब पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एच इंटू म्यू टू इज इक्वल टू एच इंटू म्यू वन प्लस एच इंटू म्यू थ्री। ऐसे क्या आएगा, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन प्लस म्यू थ्री, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन प्लस म्यू थ्री। तो वेन एवर यू सी ना 2 से 3 ट्रांजिशन आ रहे हैं, हमेशा लाइन डायग्राम ड्रॉ करो, फिर एनर्जी देखो कि किस किस का एनर्जी के समेशन किसके इक्वल है। इफ यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्वेबल हो जाएगा। डन, यस, नो, चलो। नाउ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन। इफ एंगुलर मोमेंटम गिवन है और वेवलेंथ उससे, तो यू कैन फाइंड आउट द एन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द एन। उसके बाद क्या बोला है कि द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लेवल टू द नेक्स्ट लोअर लेवल। लेट्स से अगर वो लेवल जो है वो 5 आ रहा है, लेट्स से जो वो 5 आ रहा है, तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 5 से 4 में हो रहा है। अगर वो 6 आ रहा है, तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 6 से 5 में हो रहा है। तो सबसे पहले तो एन फाइंड आउट करो कि वो एन कौन सा है। वंस यू गेट द एन ना, उसके बाद चीजें सिंपली हो जाएगी, सिंपलीफाई फॉर्म में कर सकते हैं। सब लोग पहले बताओ कि एन कितना आ रहा है। ओके रुचिर, गुड। आई थिंक यस, समझा या ना। इसका ना ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, उसने बोला है नेक्स्ट लोअर लेवल पे बोला है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन होगा तुम्हारे पास फोर्स, अगर एन तुम्हारे पास 4 आ रहा है मैक्सिमम। अच्छा, किसी का आंसर भी आ गया, ओके। ओके गार्गी, गुड। ओके फाइन, चलो सही। ये लोग भी एक बार ट्राई करो। लेट्स टेक अनदर 1 to 2 minutes, देन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। 1 2 3, चलो। एग्जाम में जो भी अभी आज प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, एग्जाम में इसमें से प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत हायर है, ठीक है।
ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है अभी, ऊपर वाला प्रॉब्लम ही अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स से इसका एंगुलर मोमेंटम गिवन है कितना। एंगुलर मोमेंटम होता है तुम्हारे पास mvr, या फिर यू कैन सिंपली से दैट nh अपॉन 2 पाई। nh अपॉन 2 पाई तुमको देख के रखा है 2h अपॉन पाई। यहाँ से यू कैन सिंपली कैंसिल आउट h टू h, पाई टू पाई। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो हो रहा है 4 to 3 में। अगर 4 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड। जेड कुछ गिवन है क्या? हाइड्रोजन एटम गिवन है। इट्स 1 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। जेड गिवन है बच्चे, हाइड्रोजन एटम। तो इट्स 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/9 माइनस 1/16। तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास 1/λ इज इक्वल टू 7r डिवाइड बाई 144। यार यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? यहाँ से लैम्डा यू विल गेट 144/7। You will get the answer D. क्लियर है प्रॉब्लम सबको? यस नो? Shall we proceed to the next one? अच्छा, चलो। ये थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यूज होगा, तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बाकी इट इज द इजियर वन, बट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के कारण वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बस। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n+1 से n में, और इस बार यू वांट टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, नॉट लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। टेक द एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पर उसने ये एक टर्म बोला है। हाँ बच्चे, उसका एलसीएम लो। गार्गी, टेक द एलसीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, स्क्वायर को ओपन करो। एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर वाला टर्म्स है उसमें स्क्वायर को ओपन करो, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होगी, एंड देन तुमको इसका यूज करना है। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाय यूजिंग दिस यू हैव टू टेक द वन अप्रोक्सीमेशंस, कुछ अप्रोक्सीमेशंस तुमको लेने हैं।
नो रुचिर, तुमने एक मिस्टेक किया है. If you take the approximation ना, तो you had made one mistake. ओके या ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ बिकॉज में अप्रोक्सीमेशन है तो माइट भी तुम उसके साथ फेमिलियर नहीं रहोगे. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. यस. बच्चे वैसे भी नहीं करना तो एन क्यूब डिफरेंट थिंग है. तो लेट्स से सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी का. तो फ्रीक्वेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा. सी इंटू लैम्डा का फॉर्मूला आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर. टेक द एलसीएम. तो n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1 स्क्वायर. ये सबको ये आंसर मिलेगा. उसके बाद ऊपर जो n स्क्वायर है उसको ओपन कर दो. इफ यू ओपन इट तो आर सी जेड स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो यू विल गेट n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा इट्स आर सी जेड स्क्वायर इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n+1 स्क्वायर. बट ऐसा आंसर कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं. अगर ऐसा आंसर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब, बट वहां पे एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन देके रखा है, n जो है वो 1 से बहुत बड़ा है. अगर n तुम्हारे पास 1 से बहुत ज्यादा है तो कैन आई सिंपली से दैट n+1 अप्रोक्सीमेटली n होगा. यस सर. लेट्स अज्यूम जो n का वैल्यू है वो 10,000 है. अगर तुम 10,000 में 1 ऐड करोगे तो क्या उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 ही लिख सकता हूँ? अगर n 10,000 है तो 10,000+1 को अप्रोक्सीमेटली 10,000 ही लिख सकते हैं क्या? यस. और वैसे ही जो तुम्हारे पास 2n+1 है, 2n+1 की अगर n 10,000 है, 2n कितना होगा? 20,000 होगा. 20,000 में अगर तुम 1 ऐड करोगे तो डेफिनेटली इसको भी तुम 20,000 लिख सकते हो. तो इसको भी क्या तुम 2n लिख सकते हो? तो यही वो अप्रोक्सीमेशन था जो इस क्वेश्चन में तुमको लेना था. दैट्स इट. तुम्हारा आंसर ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट ऐसा ऑप्शन ऑप्शन में अगर ऐसा होता तो ठीक है, यहीं पे फिनिश कर देते. पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है इसलिए आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे. फ्रॉम हियर यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर इंटू इट्स 2n/n की पावर 4. फ्रॉम हियर यू कैन कैंसल आउट 1n. तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? नीचे n क्यूब बचेगा तो वहां से आएगा 2r c z² अपॉन n क्यूब. इट्स a. डन. So what I did was I opened the bracket, means x square. I did like I squared it and I opened the bracket, and then I got 2n+1 upon something like n raised to 4 plus n square. So in the numerator I had like degree 1 term, and in the denominator I had degree 4 term. So I just like approximated to n 1 upon n cube. हाँ फाइन, ठीक है. मतलब तुमने एक्चुअली जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में है वो भी ओपन कर दिया ना, देन उसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया. Yeah. या फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं.
बट ठीक है, इस तरीके सर अपन ये काम करते हैं, ये ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन यहीं पे लेके सर यहीं पे है ना n+1 को n लिख लेते हैं तो वो 0 ही आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। एलसीएम लेके देन यू हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पर इसको n लिख लिया ना, सर यहाँ पे n लिख लेते हैं तो फिर भी 0 आ जाएगा, वैसा नहीं चाहिए, इसलिए उसको ओपन करते जाओ। क्लियर सबको ये प्रॉब्लम? यस नो? चलो, एग्जाम में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है ना वो स्पेक्ट्रम का ही आता है। चलो देन हमारा नेक्स्ट क्लास में बोर्ड्स मॉडल खत्म हो जाएगा। चलो ये प्रॉब्लम करो। If the photon emitted due to the electronic transition from the fifth excited state to second excited state in lithium plus, कोई फिफ्थ में है, फिफ्थ से वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग उसका एन कितना है? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग एन कितना है? 6। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग एन कितना है? 3। और ये ट्रांजिशन किस में हो रहा है? लिथियम प्लस में, तो लिथियम प्लस का जेड कितना है? 3। तो एग्जाम में कभी प्रॉब्लम पूरा तुमको ध्यान नहीं, तुमको जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 6 से 3 में जा रहा है लिथियम 2+, बाकी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे के रखी है, उसका कोई यूज ही नहीं। उसका क्या कर रहे हैं, वहां से 6 से 3 में अगर आएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा? फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा? इमिट करेगा, क्योंकि हायर से लोअर में आएगा तो फोटोन क्या होगा? इमिट होगा। वो इमिट फोटोन जो है वो क्या कर रहा है, वो हीलियम प्लस जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। हीलियम प्लस का जेड कितना होता है? 2। हीलियम प्लस का जेड कितना है तुम्हारे पास? 2। और जो वो हीलियम प्लस को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो हीलियम प्लस जो है पहले से ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। वो किस में है? वो 2 में है। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर मैं सिंपली एक डायग्राम ड्रॉ करूँ ना, एक्चुअल में ये हो रहा है। मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर तुम सोचो। ठीक है, ये लेट से यहाँ पर कहीं पर ये है लिथियम 2+। जब भी बहुत सारे ट्रांजिशंस दिखे तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया करो। ये लेट से बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशंस हैं, तो ये लेट से 6th वाला ट्रांजिशन है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसका? लिथियम 2+ का। ये लेट से 3 है, ये लेट से 1 है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है वो 6 से 3 में कर रहा है लिथियम 2+ में। यहाँ से फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब किया उसने, ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? फोटोन एब्जॉर्ब किया, उसके बाद ये बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं किसके? हीलियम प्लस के, और भी होगा इस तरीके से। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये है तुम्हारे पास हीलियम प्लस का। तो यहाँ पे क्या है, ये लेट से n=1 है, ये n=2 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, फोटोन इमिट किया। हीलियम क्या है, पहले से ही सेकंड फर्स्ट एक्साइड स्टेट में है। अब ये क्या करेगा, जो ये फोटोन यहाँ पे आएगा ना,
ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा ये क्या करेगा, तुम्हारे पास लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा वो अपने को पता नहीं, वो अपने को फाइंड आउट करना। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द फोटोन इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन लिथियम प्लस is used to excite helium plus, which is already in the first excited state, and find out the final state of helium plus. जो भी ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसका डायग्राम ये ड्रॉ कर लिया है। अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो देख के आस्क। ओके गार्गी, गार्गी का आंसर भी आ गया, गुड। मतलब ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट एक्चुअल में इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसके दो मेथड है जिससे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके जीत, ओके रुचिरिया, गुड। क्या मुझे कोई अप्रोच बता सकता है कि कैसे करना है? क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं यहाँ पर? तो अपना माइक ऑन कर सकते हो बच्चे। So first find 1 upon lambda for lithium, and then यस, just set it on the LHS for He and solve for N. ओके फाइन, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ यहाँ से इमिट कर रहा है वही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोनों के वेवलेंथ को इक्वल कर दो। दिस इज अगेन द गुड थिंग। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी ये इमिट कर रहा है वही एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है? ये सेम चीज है। क्या सिंपली मैं लैम्डा को इक्वेट कर दो, या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ जो एनर्जी इमिट हो रहा है वही तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी कितना, एनर्जी का फॉर्मूला कितना? एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एनर्जी एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, कौन कर रहा है? हीलियम कर रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 1/, वो 2 में है और कहीं n में जा रहा है। क्या ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? यस, नो? उस प्रॉब्लम की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से 13.6 से 13.6 कैंसिल आउट, 3 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट 1 माइनस 1/4। मैंने 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया है तो यू विल गेट दिस, और 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस 4/n स्क्वायर। यस। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल आउट। यहाँ से नीचे एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4/n स्क्वायर। तो यहाँ से n स्क्वायर कितना आएगा, 16। फ्रॉम देयर n कितना आएगा, 4। फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, 4। फाइनल स्टेट 4, या फिर मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? अगर मेरे को पूछा कि फाइनल स्टेट क्या होगा तो विल से 4, या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थोड़ा और करेक्शन कर लेते हैं। फाइनल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम प्लस
just after absorbing the photon. मैंने ये क्यों लिखा है, कोई बता सकता है? So because it will go back to ground state because it's more stable there. After यस, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैंने फाइनल स्टेट पूछा है ना हीलियम प्लस का, तो फाइनल स्टेट तो क्या होगा, वो हायर में जाएगा बट फाइनल वापिस वो लोअर में ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि फोटोन को जब एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्टेट क्या है, तब वो 4 पे जाएगा। बट अगर फाइनल स्टेट का मतलब ये भी तो हो सकता है कि 4 से वो 3, 2, 1 में डायरेक्टली आ जाए। तो ये करेक्शन था, तो अगर एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी वो कंफ्यूज कर देंगे। क्या मेथड 1 सबको क्लियर है? यस। चलो, मेथड 2 एक फॉर्मूला है, तो वो भी तुम वहां से तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक्चुअल में एक रिलेशन होता है, दैट इज द, अगर तुमको वो याद करना है तो वहां से चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। n2 माइनस n1 नहीं है, इट्स n2 से n1 डिवाइडेड बाय z ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू n2 डैश टू n1 डैश डिवाइडेड बाय z ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल्स टू n2 डबल डैश टू n1 डबल डैश डिवाइडेड बाय z ऑफ लिथियम 2 प्लस। तो ये रिलेशन है, इफ यू वांट टू लर्न इट तो तुम डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब होगा, लेट्स से हाइड्रोजन कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, वही हीलियम इमिट कर रहा है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। मतलब जितना सेम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सेम अगर एनर्जी इमिट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, लेट्स से अगर सपोज कभी भी हाइड्रोजन जो है वो 2 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, Z कितना है हाइड्रोजन का 1, और लेट्स से मेरे को फाइंड आउट करना है कि मैं हीलियम प्लस का कौन सा स्टेट लूं जहां पर सेम एनर्जी इमिट हो या फिर सेम वेवलेंथ इमिट हो, तो उसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से n2 डैश से n1 डैश कितना आएगा, वो आएगा 4 से 2। मतलब जो हाइड्रोजन 2 से 1 आने में एनर्जी इमिट कर रहा है, वही हीलियम जो है 4 से 2 आने में एनर्जी इमिट करेगा। अच्छा, और लिथियम के लिए क्या करूंगा बताओ, लिथियम वही किसमें इमिट करेगा, वही अगर लिथियम के लिए लिखूंगा तो लिथियम के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेट करूंगा किससे, n2 डैश से n1 डबल डैश अपॉन 3। तो वही n2 डैश कितना आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये सिंपल ट्रिक है जहां से तुम डायरेक्टली, अगर एनर्जी सेम एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी सेम इमिट कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन 2 से 1 आने में एनर्जी इमिट कर रहा है, वही हीलियम 4 से 2 आने में एनर्जी इमिट करेगा, वही लिथियम 6 to 3 आने में एनर्जी इमिट करेगा। तुम एक काम ये भी कर सकते हो, तुम एनर्जी गैप निकाल के देख लो, हाइड्रोजन के लिए 2 से 1 का, हीलियम के लिए 4 से 2 का, लिथियम के लिए 6 से 3 का एनर्जी गैप निकाल के देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये एक्सप्रेशन क्या डिनोट क्या कर रहा है? मैं 5 मिनट्स और एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा होमवर्क है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम करवाना है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, इसमें वही सेम चीज करनी है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें लिथियम का इन्फॉर्मेशन गिवन है, लिथियम का इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, लिथियम आ रहा है 6 से 3 में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। ओके, हीलियम का फाइनल फाइंड आउट करना है, तो हीलियम का फाइनल मतलब n2 फाइंड आउट करना है, n2 डैश, n1 कितना देके रखा है 2 अपॉन 2। क्या ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? चलो, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसको कैंसिल आउट कर लो, ये 3 से जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, फॉर्मूला आ जाएगा n2 डैश
से 2/2। बच्चे वो डैश है, वो इक्वल नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत मत करना, अदरवाइज गलत आंसर आएंगे। लोग उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। नाउ 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट 4/2। अब देखो, अब तुम कंपेयर कर सकते हो, और कंपैरिजन तभी होगा जब ये 2 और ये 2 इक्वल होंगे। अगर ये 2 और ये 2 इक्वल है, इसका मतलब n2 कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 4। सर अगर एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, इसका मतलब वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो n2 डैश कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 4। आई नो फर्स्ट मेथड इजी है, बट इस सेकंड मेथड में कोई कैलकुलेशन नहीं। क्या सेकंड मेथड सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये मेथड किसी भी बुक में गिवन नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, ये मेथड किसी भी बुक में मेंशन नहीं है। क्या सेकंड मेथड सबको क्लियर है? अगर तुमको क्लियर है तो आई वुड सजेस्ट कि फिर तुम मेरे को एक प्रॉब्लम करके बता। कॉपी। तो ये लास्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास का, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मैं एक स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ। सेम प्रॉब्लम, बट इस बार ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं होके फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। दैट्स इट, और कोई भी चेंजेस नहीं किया। एंड आई वुड सजेस्ट कि मेथड 2 से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में बोर मॉडल फिनिश हो जाएगा एंड आई विल स्टार्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। और मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी रखना पड़ेगा, बिकॉज अपना एक डाउट लेक्चर में वी वर कवरिंग द थ्योरी, बट लोग मैक्सिमम लोग कनेक्टेड नहीं थे, तो अपन लेक्चर नहीं कर पाए थे। ओके गार्गी। चलो क्या होगा बताओ? दो लोगों को, एक गार्गी का आंसर आया 10, जीत एंड गार्गिया, बाकी लोग 10/3 मतलब 3। क्या वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा पॉसिबल? 10 कैसे आएगा? क्या वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा? n2 डैश से n1 डैश डिवाइडेड बाय z ऑफ हीलियम प्लस
is equals to n2 double dash to n1 double dash is equals to z of lithium plus 2। इस बार n2 डैश फाइंड आउट करना है अगेन, n2 डैश फाइंड आउट करना है, से n1 डैश तुमको गिवन है, अगेन 2 ही गिवन है, वो डिवाइड बाय z कितना है, वो भी 2 गिवन है। n2 डबल डैश बार 5 गिवन है, 5 से 3/3 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से आएगा n2 डैश से 2/2 इज इक्वल्स टू 5/3 to 1। ये क्लियर है सबको? यस नो? एंड अब देखो क्या क्या बताया था, ये अगर इसके इक्वल है वो भी इक्वल होना जरूरी है, अगर इक्वल नहीं होगा तभी भी ट्रांजिशन नहीं होगा। इसका मींस n2 डैश कितना आएगा, n2 डैश कितना आ जाएगा 10/3। क्या n2 कभी भी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? क्या n2 कभी भी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? नो, n2 कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर n2 फ्रैक्शन नहीं हो सकता इसका मतलब क्या, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा क्या? नहीं, फोटोन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अगर फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा इसका मतलब फाइनल स्टेज इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जस्ट उसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, इसका मतलब 2 पे था 2 पे ही रहेगा। बच्चे फाइनल स्टेट जस्ट फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब ही नहीं कर 2 पे ही है। अगर मेरे को एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज द फाइनल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम प्लस, तो मैं 1 लिख लूंगा, बट जस्ट आफ्टर द एब्जॉर्बिंग द फोटोन लिखा है, इसका मतलब मैं उसको क्या लिखूंगा, वो 2 पे था 2 पे ही रहेगा, या फिर और उसको मैं लिख सकता हूँ, इट विल बी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है सबको? एंड अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है लास्ट क्लास में और अभी की क्लास में, बेस्ड ऑन दैट ये प्रॉब्लम गिवन है। दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। आज जितनी भी प्रॉब्लम की है सारी प्रॉब्लम्स को घर पे एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है? एग्जाम में इसी टाइप की क्वेश्चंस तुम्हारे पास आएंगे। तो क्लास इज ऑफिशियली एंड। ये होमवर्क का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में बोर मॉडल खत्म करने के बाद मैं होमवर्क देने वाला हूँ। तो अगर तुमको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, बाय बाय। इज देयर एनीवन जिसको कुछ डाउट है? ओके देन, चलो बाय।